my dear students, welcome to Geometrics classes for mathematics. Today I will discuss our JSTSE previous year questions from number system. This is part 2. Question number 1. If 6 upon 3 root 2 minus 2 root 3 equal 3 root 2 minus 2 root a root 6, then the value of a is. चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा? First of all we write 6 upon 3 root 2 minus 2 root 3. First we rationalize this by multiplying 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 root 2 plus 2 root 3. This is equal to 6 into 3 root 2 plus 2 root 3 divided by, this is in the form a minus b into a plus b. If we multiply, this will be a square minus b square, 3 root 2 square minus 2 root 3 square. 3 root 2 square is 3 3 is 9, 2 is 18, minus 2 2 is 4, 3 is 12, 6, 3 root 2 plus 2 root 3 upon 18 minus 12. That is 6, 6 and 6 cancel. So, this is 3 root 2 plus 2 root 3 equal to 3 root 2 minus a root 6. We see that 3 root 2 and 3 root 2 cancel. 2 root 3 equal to minus a root 6. So, a equal to minus 2 root 3 over root 6. If we multiply it by root 6, this is 2 root 18 over 6. This is equal to minus under root 3 into 2 divide 3 minus 3 root 2 over 3, 3 cancel equal minus root 2. So answer is B option. First we rationalize, then evaluate 3 root 2 minus a root 6, then we will find a equal to minus root 2. Next, question number 2. Question number 2 is, if 9 power x minus 2 equal to 3 raised to power x plus 1, then the value of two raised to power 1 plus x. We have 4 options: A 64, B 32, C 16 and D 15. 9 raised to power x minus 2 equal 3 raised to power x plus 1. We can write 3 raised to power 2 into x minus 2 equal 3 raised to power x plus 1. This implies 3 raised to power, so we can write, since base is same, so exponent will be same. So 2x minus 2 to the 4 equal to x plus 1. This implies 2x minus x equal 1 plus 4, 5. Now we have to find 2 raised to power 1 plus x, that is 2 raised to power 1 plus 5, that is 2 raised to power 6 equal to 64. So 64 answer is correct. Third question. Question number 3. This is very good question.
if a plus b root 30, a plus b root 30 equal to under root 2.3 plus, no, minus under root 0.69 divided by root 2.3 plus root 0.69, then the value of a and b are, then the values of a and b are option A minus 13/7, comma B minus 2/7, A equal minus 13/7, comma 2/7, C option 13/7, comma minus 2/7, D option 13/7 and 2/7. A plus b root 30 equal to this. So we rationalize this. A plus b root 30 equal under root 2.3 minus under root 0.69 whole divided by under root 2.3 plus under root 0.69. First we rationalize by changing positive sign to negative. We will multiply under root 2.3 minus under root 0.69 whole divided by under root 2.3 minus under root 0.69 equal to, this is in the form a minus b whole square. This is a, this is b, a minus b into a minus b. So this is in the form a minus b whole square. So we can write a square, that is 2.3, plus b square, that is 0.69, minus 2ab, 2 under root 2.3 into 0.69 upon, this is in the form a plus b into a minus b. So this is a square minus b square, this is 2.3 minus 0.69. (2.3) 0.69 2.99. This is 2.99 minus 2 into under root. This can be written as 0.23 into 0.23 into 30 upon 2.3 minus 0.69. Ten minus 9, 1. 12 minus 6, 6. This is 1.61. Here we take common 2.99 minus 2 into 0.23 into root 30 divided by 1.61. By separating 2.99 divide 1.61 minus 2 into
0.23 by 1.61 root 30. We see that here point is after two places, so we cancel the point. 23 into 7, 7 3 are 21, 2 7 2 are 14, 2 16, 161. So we can cancel 23 7 jar, and 23 7 jar, ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल. 23 7 जा, 23 1 जा 6 69, 23 3 जा. So this is equal to 13 by 7 minus this is 2 by 7 root 30. If we compare this value with this, a plus b root 30 equal 13 by 7 minus 2 by 7 root 30, we see that a is this and b is this. So a equal to 13 by 7 and b equal to minus 2 by 7. So 13 by 7 and minus 2 by C option is correct answer. A equal 13 by 7, b equal minus 2 by 7. Third question complete. Fourth question. If x equal 3 minus 2 root 2, then the value of x square plus 1 over x square is option A 34, B 38, C 36, D 32. Very simple question. X is given, you have to find x square plus 1 by x square. First of all, we find 1 by x. 1 by x equal 1 over 3 minus 2 root 2. Rationalize multiplying by 3 plus 2 root 2. This is in the form a minus b into a plus b. So we will write a square minus b square, 3 square minus 2 root 2 square, and this is 3 plus 2 root 2. 3 square 9, 9 minus 2 root 2 square, 2 to the 4 into root 2, 2, 4 to the 8, 9 minus 8, that is 1, 3 plus 2 root 2 upon 1, 3 plus 2 root 2. We see that 1 by x equal to 3 plus 2 root 2. So we can find x plus 1 by x. X plus 1 by x, that is 3 minus 2 root 2, this is x, and 1 by x is 3 plus 2 root 2. So 2 root 2 and 2 root 2 get cancelled, equal to 6. X plus 1 by x equal to 6, squaring both sides. X plus x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x equal to 36. x cancel, 2 को shift करो, x square plus 1 over x square 36 minus 2, that is 34. 34 is correct answer. Question number 4 completed.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if x raised to power a equal y raised to power b equal z raised to power c and y square equal zx, then the value of one by a plus 1 by c is option A b by 2, option B c by 2, C 2 by b and D 2 by a। अब ये क्वेश्चन है x रेज टू पावर a इक्वल y रेज टू पावर b इक्वल z रेज टू पावर c एंड y स्क्वायर इक्वल टू zx। तो y स्क्वायर इक्वल zx गिवन है, तो z और x को y के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं यहां से। तो देखिए x रेज टू पावर a इक्वल टू y रेज टू पावर b, अगर इस पावर को हम शिफ्ट कर दें इधर तो x इक्वल हो जाएगा y रेज टू पावर b अपॉन a। इन द सेम वे y रेज टू पावर b इक्वल टू z रेज टू पावर c, सो z इक्वल टू y रेज टू पावर b ओवर c। c को इधर शिफ्ट कर दिया, अब ये हमें दोनों वैल्यू मिल गया y के फॉर्म में, x इक्वल y रेज टू पावर b बाई a एंड z इक्वल y रेज टू पावर b बाई c। नाउ y स्क्वायर इक्वल टू zx, सो वी कैन राइट y स्क्वायर इक्वल टू zx, तो z इज y रेज टू पावर b बाई c मल्टीप्लाई x is y raised to power b by a, in multiplication base is same, so power should be added, b by c plus b by a, power is same, base is same, so exponent will be same, 2 equal to b by c plus b by a, we can take common b common 1 by c plus 1 by a, b को इधर शिफ्ट करें, 2 by b equal 1 by c plus 1 by a. Now we have to find 1 by a plus 1 by c is 2 by b. Option C is correct. x raised to power a equal y raised to power b गिवन है, इस पावर को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 by a b इंटू 1 by a दैट इज b by a। इसी तरह से y raised to power b है, इसे इधर शिफ्ट करोगे तो z इक्वल क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर b इक्वल जेड पावर c, तो z इक्वल क्या, z के पावर को इधर शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो b बाई c हो गया। y स्क्वायर इक्वल जेड एक्स गिवन है, तो हमने z की वैल्यू यहां से y पावर b बाई c, x की वैल्यू यहां से y पावर b बाई a, अब बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर को ऐड करते हैं तो b बाई c प्लस b बाई a। अब यहां पर बेस सेम है दोनों तरफ, पावर को इक्वल कर दिया, 2 इक्वल बी बाई सी प्लस बी बाई ए, यहां से b कॉमन ले लिया, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए और b को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 बाई बी इक्वल 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। अब हमें फाइंड करना था 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, तो आंसर आ गया 2 बाई बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, question number 6 is if 2 raised to power a plus 3 equal to 4 raised to power a plus 2 minus 48, then the value of a is, then the value of a is, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, सी है -1 और डी है आपका 2 -2। अब आप देखिए 2 रेज टू पावर a प्लस 3 है इक्वल 4 रेज टू पावर a प्लस 2 माइनस 48। क्या करना चाहिए हमें, पावर को
रीग्रुपिंग, 2 पावर a इंटू 2 पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। 4 जो है इसे 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2a प्लस 4 माइनस 48, 2 पावर a इंटू 8 इक्वल 2 पावर 2a इंटू 2 पावर 4 माइनस 48, 2 पावर a इंटू 8 इक्वल 2 पावर a होल पावर 2 इंटू 16 माइनस 48। अब आप यहाँ पर देखें पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2a को हमने स्प्लिट कर दिया, पावर a रहने दिया, ऊपर में 2 लगा दिया। अब आप देखें 2 पावर a को अगर लेट कर ले हम 2 पावर a इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 8 दैट इज 8y, ये y स्क्वायर इंटू 16 तो 16y स्क्वायर माइनस 48। अब आप इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 16y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब आप देखें ये सारे टर्म 8 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे, 6 इंटू 2 12, 12 का फैक्टर 4 इंटू 3, क्योंकि बीच में 1 लाना है तो इसे लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज 2y अगर कॉमन ले लें तो y माइनस 2, 3 कॉमन ले लें y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आइदर y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। अब सिंस y इज 2 पावर a इक्वल टू y, so y is 2, put here 2 raised to power 1, so a इक्वल टू 1। अब ये नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ गया a का वैल्यू 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखें। तो हमने क्या किया, इसे स्प्लिट कर लिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहता है बेस सेम, तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो 2 पावर a प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 पावर a इंटू 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 8 हो गया, 2 पावर a ऐसे रहने दिया। यहाँ पर देखो 2 पावर 2a इंटू 2 पावर 4, ऐसा इसलिए लिखा कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, 2a प्लस 4 ये ऐड के फॉर्म में है, उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो a पावर m होल पावर n, a पावर mn होता है, तो ये 2 पावर a का पावर 2, क्योंकि जब इंटू करोगे 2 पावर 2a, तो 2 पावर 2a को हम स्प्लिट करके 2 पावर a रेज टू पावर 2 कर दिया हमने। अब ये बन गया 2 पावर a का होल स्क्वायर। अगर हम इसे y लेट कर ले तो ये 8y इक्वल 16y स्क्वायर माइनस 48। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो एक इक्वेशन बन जाता है। अब इस इक्वेशन में 8 कॉमन है तो कॉमन लेकर के उधर शिफ्ट कर देंगे, या फिर सोचो 8 से सबको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो बन गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12, 12 के 2 फैक्टर बनाते हैं, 4 3 जा माइनस 4y प्लस 3y माइनस 6, कॉमन लिया y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आए, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3/2। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव का पावर है, इधर नेगेटिव में आएगा नहीं 2 का पावर, तो इसलिए हमने क्या किया y इक्वल टू 2 लिया। अब 2 को 2 पावर 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिया तो a इक्वल टू 1 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप पहले समझें, समझने के बाद खुद से इसे करने की कोशिश करें। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है ये,
प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ेगी, नए नए आइडियाज़, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इफ ABC equal 1, ABC equal 1, then value of the value of 1 plus A plus B power minus 1 whole power minus plus 1 plus B plus C, B plus C minus 1 whole power minus plus 1 plus C plus A पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1। अब हमें ये निकालना है। अब आप देखें और इसके 4 ऑप्शन है। ए में 2 1 4 8, 2 1 4 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से इसको करना है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर लगाए हम तो आसानी से ये हो जाएगा। ABC 1 है, इसका मतलब A को भी 1 ले लो, B को भी 1, C को भी 1। तो यहाँ पर अगर पुट करो तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, 3 पावर माइनस 1, 3 पावर माइनस 1, 3 पावर माइनस 1, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव अप्रोच लगाएं तो इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस A प्लस 1/B। ये पावर माइनस 1 है इसलिए 1/, लिखा। ये B का पावर माइनस है 1/B लिखा, प्लस इसे भी 1/1 प्लस B प्लस 1/C, और इसे भी 1/1 प्लस C प्लस 1/A। अब आप देखें कि हम किस सबको A और B में कन्वर्ट कर लें या B और C में कर लें, या एक हम वेरिएबल हटा देते हैं। मान लीजिए C को हटाते हैं यहाँ से, तो 1/C के बदले क्या लिख सकते हैं? C को अगर इधर भेज दिया ABC इक्वल 1, तो C इक्वल टू 1/AB होगा। और अगर हम C को भेजें उधर तो AB इक्वल 1/C, तो 1/C की जगह AB लिख दें यहाँ पर, और ये जो C है इसकी जगह 1/AB लिख दें, बस खत्म। 1 प्लस A प्लस 1/B प्लस 1/1 प्लस B प्लस, जैसा कि हमने आपको बताया 1/C की जगह AB लिख दें, और प्लस में 1/1 प्लस, और ये जो C है इसे कन्वर्ट करें, C को आप लिख दें 1/AB प्लस में 1/A। अब आप देखें यहाँ पर नीचे एलसीएम करें तो B आएगा। B को 1 से करेंगे B को A से करेंगे AB प्लस 1, बीच में प्लस का साइन, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, 1 प्लस B प्लस AB ऐसे लिख दें। और यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, AB और A का एलसीएम AB होगा। AB को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, AB प्लस यहाँ AB है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस AB को A से डिवाइड करेंगे B आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 टर्म है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। मेन डिवीजन ये है, B ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा B/B प्लस AB प्लस 1, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 1/1 प्लस B प्लस AB, प्लस ये AB ऊपर चला जाएगा AB/AB प्लस 1 प्लस B। अब आप देखें डिनोमिनेटर में तो टर्म थोड़ा आगे पीछे है पर ये सारे नंबर सेम है, B प्लस AB प्लस 1, तो इसको हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में B प्लस AB प्लस 1। अब आप डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, तो B प्लस 1 प्लस AB। अब आप देखें जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1, तो इसका 1 आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 8. The value of 1 by root 2 plus 1 plus 1 by root 3 plus root 2 plus 1 by root 4 plus root 3 plus dot 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 plus 1 by root 9 plus root 8. चार ऑप्शन है 4 1 2 3. ए में 4 है, बी में 1, सी में 2, डी में 3. अब ये जो है हर एक टर्म को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा. 1 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया है. तो फर्स्ट जो है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 को अगर हम रेशनलाइज करें, रूट 2 माइनस 1, 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2, तो रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस डॉट 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 बीच में आएगा प्लस 1 बाय रूट 9 प्लस रूट 8 को रूट 9 माइनस रूट 8 से. तो यहाँ पर एक खासियत देखेंगे आप, ऊपर रूट 2 माइनस 1 होगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1. इसी तरह से रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे 3 माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस रूट 9 माइनस रूट 8 नीचे 9 माइनस 8. अब आप देख रहे हैं 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 8 1. इसका मतलब डिनोमिनेटर में सबके 1 आएंगे. तो ये हो गया आपका रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस, अब आप एक ऑर्डर देखें तो प्लस में रूट 9 माइनस रूट 8. अब ये रूट 2 जो है इससे रूट 2 से कट जाएगा, रूट 3 इसके अगले नंबर से कट जाएगा, रूट 8 इससे पहले कट जाएगा. आपके पास बचेगा -1 प्लस रूट 9. ये हो जाएगा -1 प्लस 3 माइनस 1 2. तो आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. If under root 13 minus a root 10 equal to root 8 plus root 5, then a each. चार ऑप्शन है. ए में -4, बी में 4, सी में -2, डी में 2. अब इसका क्या आंसर आएगा? अब आप देखें रूट के अंदर रूट है, फिर इधर भी रूट लगा हुआ है. तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे. रूट अंडर 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5 है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये रूट हट जाएगा. 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल ये 8 प्लस 5 प्लस 2ab करेंगे 2 रूट 40 हो जाएगा. 8 प्लस 5 13 हो गया, 13 से 13 कट गया, माइनस ए रूट 10 इक्वल टू ये 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं. 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर आया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 रूट 10 हो गया. अब देखें आप, ये कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू -4 आंसर निकल के आ गया. तो ए इक्वल टू -4, यहाँ पर -4 होना चाहिए, आंसर सही होगा. हाँ -4 है, -4 4. ये -4 है, ये 4 है, ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10, simplified form of 2 raised to power n plus 4 minus 2 into 2 raised to power n divided by 2 into 2 power n plus 3
चार ऑप्शन है। ए में 1/8, बी इज 5/8, सी 7/8 एंड डी 9/8। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए पावर में तो सबसे पहले स्प्लिट करना चाहिए। 2 पावर n+4 है, इसे आप 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। ऐड के फॉर्म में था, उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। -2 इंटू 2 रेज टू पावर n ऐसे ही रहने दें, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 3 ऐसे कर दें। ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें ऊपर में 2 पावर n कॉमन है, 2 पावर n कॉमन ले लें, ये हो गया 2 पावर 4 -2 डिवाइड में 2 पावर n इंटू 2 इंटू 2 क्यूब। अब आप देखें 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल हो गया, 2 पावर 4 हो जाएगा 16 -2 डिवाइड 8 2 जा 16, दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन में 16, 2 7 जा 2 8 जा 7/8 इसका आंसर हो गया। आंसर नंबर 6 सी। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका निकालना था। तो इस तरह के अगर पावर के फॉर्म में आए तो आप स्प्लिट करके कॉमन लेकर के ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर सिस्टम के JSTS में प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाय।